Armcliffe Company. Determine whether proposed capital investment is attractive to Armcliffe using average rate of return on capital method as defined as average profit upon average capital employed, ignoring receivables and payables. हमें receivables और payables को ignore करना है और हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. कैपिटल एम्प्लॉयड में तीन चीजें आ सकती हैं, रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड इन्वेस्टमेंट. हमें बोला गया है कि वी हैव टू इग्नोर रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, तो खाली इन्वेंट्रीज आएंगी. मैंने राहुल तीन चीजों में मैंने क्या क्या बोला था? इन्वेस्टमेंट बोला क्या गलती से? ओ सॉरी, इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स. सो सॉरी. Pardon. Determine proposed capital investment attractive to Armcliffe using average. ठीक है. Armcliffe Company is a division of Chevron Incorporation using which requires each of its divisions to achieve a rate of return on capital employed at least as 10%. For this purpose, the capital employed is defined as fixed capital and investment in inventories. तो इन्होंने capital employed को define किया है fixed capital and investment in inventories की तरह. ठीक है. This rate of return is also applied as hurdle rate for new investment projects. Divisions have limited borrowing powers and all capital projects are centrally funded. ठीक है. The following is an extract of from Armcliffe's divisional accounts: sales, cost of sales and operating profit. तो हमारा ये operating profit आ गया जो हमारा न्यूमरेटर बनता है. और assets employed as at 31st of December 2014. तो ये आ गया नॉन करंट एसेट 75, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज इज 25 एंड करंट लायबिलिटीज में 32 नेगेटिव. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. Armcliffe's production engineers wish to invest in a new computer control press. The equipment cost is 14. अच्छा, ये हमारा न्यू इन्वेस्टमेंट है. Determine whether the proposed capital investment is attractive to Armcliff. तो हमारा जो ROCE है वो मोर देन 10% आना चाहिए, राइट, इनके हिसाब से. ठीक है. तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट दिया गया है दिया गया है 3 मिलियन रेसिड्यूअल वैल्यू. New machine is capable of improving the quality of existing product and also producing a high volume. The firm's marketing team is confident the selling and increased volume by extending the credit period. ठीक है. Year 1, year 2, year 3. Okay. Existing and also capable of producing higher volume. तो ये हमारा higher volume है. The firm's marketing team is confident of selling the increased volume by extending the credit period. ठीक है. तो ये हमारे जो है वो सेल के यूनिट्स बन जाते हैं. फाइन. The sales volume is expected to fall over time due to emerging competitive pressures. Competition will also necessitate a reduction in price by 0.5 each year from 5 per unit. ओके, सो सबसे पहले हमें here particulars. Sales volume is expected to fall over time due to emerging competitive pressures. Competition will also necessitate a reduction in price by 0.5 each year from 5 per unit. तो हमें ये दिया गया है particulars year 1, year 2, year 3 and last में था year 4. एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन,
तो 1 2 3 और लास्ट में ये कॉपी पेस्ट, ये सारी हायर वॉल्यूम्स के हैं। सेल्स यूनिट्स, सेलिंग प्राइस में एक्चुअली यूनिट जिसको ऐसे लिखते हैं सेलिंग प्राइस। मेरा सेलिंग प्राइस जो था वो था 5 पर यूनिट, लेकिन वो रिड्यूस हो रहा है 0.5 से हर साल। ये तो मेरे जो एक्चुअल सेल्स आते हैं वो आते हैं ऐसे। एक्चुअली मैं क्या बोलता हूँ, मैं इसको ना वर्किंग नोट में लिख देता हूँ। फिर आता है वेरिएबल कॉस्ट। उसके ना मैं इसको ऐसे श्रिंक करके ना जरा नीचे लिख देता हूँ, अगर वेरिएबल कॉस्ट रहेंगे तो यूजुअली होते हैं। लेट्स गो अहेड। Operating costs are expected to be steady at 1 per unit and allocation of overheads by central finance department is set to be 0.75. Oh, okay. So this is operating in costs. So there. तो ये हो गया स्टेडी 1 वाला। और अभी हमें लास्ट जो देखना है वो है ओवरहेड्स का। None of which are affected by the new project is 0.75. None of which are affected by the new project. ये मैं थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, रुक जाओ। इसको कंसिडर करेंगे, ये तो कर देते हैं। ओवर हेड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स will be this reduction by this reduction by this। तो ये हो गए मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। हाई प्रोडक्शन लेवल्स विल रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरीज ऑफ 0.5। ये तो सारे ही हायर हैं, इन्होंने हमें बोला हुआ है इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग हायर वॉल्यूम। तो ये हायर वॉल्यूम वाली हैं सारे के सारे, which would be held at this level until the final stage of operation of the project. Customer at present settle accounts after 4 days of average, sorry after 90 days of average। कोई बात नहीं। सबसे पहले अभी हमें यहाँ पर जो देखने थे, हमारा आरओसी का फॉर्मूला क्या आता है। आरओसी का फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन मैंने यहाँ पे बोला है कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। Have told us to take capital employed
सो ROC कितना होगा? सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट्स देख लेते हैं हमारे कितने आए हैं। ठीक है, इतने हमारे आए हैं एवरेज प्रॉफिट्स। Now what they have told us is determine whether the proposed investment is attractive to Armcliff using average rate of return on capital method defined as average profit upon average capital employed, ignoring receivables and payables। हमें receivables और payables को तो इग्नोर ही करना है, लेकिन हमें अब हमें खाली इन्वेंट्री को कंसिडर करके चलना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में पर्टिकुलर से लेके ईयर यहाँ तक हम करेंगे इन्वेंटरी को कंसिडर। इन्वेंट्री हमें एक तो यहाँ पे दी गई है एडिशनल इन्वेंट्री, ये सारे हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन ही ऐसा हमें ऊपर बोला गया था, तो हम उसी को कंसिडर करके आगे तक जाएंगे। और अभी हमें ढूंढनी है इन्वेंटरी। इन्वेंटरी हम कैसे ढूंढेंगे? Armcliffe production engineers want to invest in a new computer control press. The equipment cost 14 million। इक्विपमेंट का जो कॉस्ट आ रहा है वो हमारा 14 मिलियन आ रहा है और उसकी रेसिडुअल वैल्यू है 2 मिलियन। वो ठीक है, लेकिन अभी हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे डेप्रीसिएशन। ठीक है, 14 मिलियन की हमारी मशीनरी थी, यानी कि मैं अगर इसको और अच्छे से लिख पाऊँ तो 14, इसका 1 2 3, एंड देन अब हमें इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। लेकिन हम वो जब हम डेप चार्ज करेंगे, इट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है मेरी इतनी है, बराबर है इसके ऊपर मेरी जो स्क्रैप वैल्यू आती है वो आती है इतनी। मैं अगर इसमें से ये हटा दूंगा, इसको मैं डिवाइड बाय 4 करूंगा तो मेरे को आता है 3 लाख का डेप्रीसिएशन। जीरो। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ अगर इन्वेंट्री को कंसिडर करना है तो देखिए हमारी ईयर 1 में इन्वेंट्री स्टार्ट हुई थी 14 मिलियन के साथ। देन हमारी एंड हुई 11 मिलियन के साथ, ईयर 2 स्टार्ट हुई। देन 8 मिलियन के साथ स्टार्ट हुई, ईयर 4 में हमारी स्टार्ट हुई 5 मिलियन के साथ। और जब 5 मिलियन जब एंड हुई ईयर 4 में, तो हमारे पास बचे थे 2 मिलियन जिसको हमने बेच दिया। राइट, हमने इसका किया टोटल। देन हमें वापस इस चीज़ का अगर एवरेज निकालना है, वो एवरेज सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले वो वापस एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं, एंड वी जस्ट हैव टू टेक दिस एंड ड्रैग दिस डाउन। ठीक है,
तो फिलहाल के लिए ये आ गया। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम ये वाला सम कर रहे होंगे तो हमें डेप्रिसिएशन को भी हमारे इन्वेस्ट हमारे जब हम वो कैश फ्लोज बनाएंगे उसमें कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि हम ऊपर जो ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं एवरेज प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एवरेज प्रॉफिट्स ले रहे हैं, ये हम कैश फ्लो नहीं बना रहे, ये हम प्रॉफिट्स ले रहे हैं। इसलिए पूरे टेक्स्ट बुक में हमने कभी भी डेप्रिसिएशन को ऊपर लिखा नहीं था, कि आज तक हमसे वो हमेशा एनपीवी पूछते थे, विच रिक्वायर्स कैश फ्लोज। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमसे आरओसी पूछा है, विच रिक्वायर्स प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे हम खाली करेंगे डेप्रिसिएशन, और हमें हर साल डेप्रिसिएशन की सेम ही अमाउंट मिलती आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, है ना। तो अभी जब हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा वो अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अब मैं ये भी माइनस कर दूंगा, माई डेप्रीसिएशन, एंड आई विल जस्ट डू द सम। तो मेरे को एक फिगर आ गई। अच्छा, ये है ना मेरी एवरेज प्रॉफिट्स की फिगर है, ये मेरी जस्ट उसके ऊपर की फिगर है बिफोर डिवाइडिंग इट बाय 4। ये भी सेम, मतलब ये भी मेरे एवरेज कैपिटल मेथड वाले, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर है। अगेन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि इन्वेंट्रीज, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स, लेकिन उन्होंने हमारे हमें बोला था था कि इस सम में हमें रिसीवेबल्स और पेबल्स को इग्नोर करना है, तो हमने इग्नोर करके वी ओनली फोकस ऑन द इन्वेंट्री। तो अभी हमें एवरेज प्रॉफिट्स जो है वो आ गए हैं 14,62,500। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें मिल गया है अच्छा खासा, 1 लाख, मिलिंग दे 10 लाख, सॉरी। सो नाउ नाउ विल फाइंड आरओसी। हमने ऑलरेडी एवरेज लिया हुआ है, तो हम बस खाली डिवाइड कर देंगे इन दोनों को, वी विल गेट द आंसर एज 14.625 एज आवर आरओसी। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी फाइंड आरओसी। एक बार हमारा आंसर उनके साथ मैच कर देगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। आर्मक्लिफ, उनको मिला है 20%, विच इज द करंट कैपिटल एम्प्लॉयड, और एडजस्ट देखो उनको उनको वही मिला है 14.6। ये करंट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 20/75 प्लस 25 विच इज 120%। एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स 14 मिलियन। ये तो हमारा नेक्स्ट आंसर है, तो ये आई थिंक इन्होंने ना, दिस इज आवर प्रोजेक्ट का आरओसी। मुझे लगता है ये हमने हमारी कंपनी का आरओसी निकाला है, जिसकी एक्चुअली जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने निकाला। ये देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20 मिलियन, इधर भी 20 मिलियन, एंड नीचे हाँ नॉन करंट एसेट 75, और यहाँ पे इन्होंने बोला है करंट एसेट्स का 25 ही लेना है, तो हमने करंट एसेट्स का खाली 25 ही लिया। कि हमें बोला गया था कि इग्नोर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। सो व्हाट वी विल डू इज, हम हमारी कंपनी का भी निकाल लेते हैं। क्लिफ कंपनीज ROC, क्लिफ कंपनीज ROC इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि इन्होंने हमें सिर्फ करंट ईयर का ही दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शंस है नहीं। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने यहाँ पे 75 प्लस 25 लिया हुआ है। हमें नॉन करंट लायबिलिटीज या एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई थी, तो हमारे पास यूज करने के लिए कुछ था ही नहीं। लेकिन फिर भी तो दिस इज 20%।
एक बार मैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का बेसिक फॉर्मूला इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो अगर कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, तो हमें यहाँ पे टोटल एसेट्स, कायदे से हमें यहाँ पे टोटल एसेट्स लेने चाहिए थे, विच इज जो भी हमारे आते हैं 45 प्लस 75 माइनस 32 विच गिव्स अस 88। तो हमें एक्चुअली 20 अपॉन 88 करना चाहिए था, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी ये भी बोला गया था कि वी हैव टू इग्नोर रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। तो इसलिए हमने खाली इन्वेंट्रीज का 25 पार्ट लिया, और करंट लायबिलिटीज इन्होंने यहाँ पे ऐसा अज्यूम किया हुआ है कि 32 का 32 पेबल्स है, ओवरड्राफ्ट है ही नहीं है, सर ने यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है। तो दैट इज हाउ वी फाइंड आर्म क्लिफ्स। और बाकी उस बंदे के लिए जो नया हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें नॉन करंट लायबल एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, सिर्फ करंट एसेट्स के बारे में दी गई है थोड़ी बहुत, और उसमें से भी हमें सिर्फ इन्वेंट्री के बारे में पिकअप करनी है। ठीक है। Suggest three problems which arise with the usage of average return method of appraising new investment. ROC can be expressed in variety of ways and as therefore susceptible to manipulation. Although the question specifies average profit to average capital employed, many other variants are possible, such as average profit to initial capital, which would raise the computed rate of return. It is also susceptible to variations in accounting policy by the same firm over time or as between different firms at a point in time. For example, different methods of depreciation produce different profit figures and hence different rates of return. तो उन्हें बेसिकली पूछा था कि थ्री प्रॉब्लम्स जो अराइज हो सकते हैं एवरेज रेट रिटर्न मेथड्स ऑफ अप्रेजिंग न्यू इन्वेस्टमेंट। नाइस यार, काफी अच्छे तरीके से बताया उन्होंने। Perhaps more fundamentally, it is based on accounting profits expressed net for deduction for depreciation provisions rather than cash flows. This effectively results in double counting for the initial outlay. That is, capital cost in is allowed for twice over, both in numerator of the ROC's calculation and also in the denominator. This is likely to depress the measured for profitability of a project and result in rejection of some worthwhile investment। ठीक है। लाइक ये मैंने थोड़ा जल्दी बोल दिया, अच्छे पॉइंट दिए, ये थोड़ा खराब पॉइंट था, बाद में पढ़ना पड़ेगा इसको अच्छे से थोड़ा। फाइनली बिकॉज इट सिंपली averages the profit, it makes no allowance for timing of the return from the project. The continuing use of the ROC method can be explained largely by its utilization. Sorry. In view of the problems associated with the ROC method, why do companies continue to use project appraisal? Continuing to use ROC method can be explained largely by its utilization of statement of financial position and statement of profit or loss magnitudes familiar to managers, namely profit and capital employed. In addition, the impact of the profit on a company's financial statements can also be specified. Return on capital employed is still the commonest way. The return on capital employed, okay, is still one of the commonest ways in which business unit performance is measured and evaluated. बराबर, क्योंकि हम जितना पैसा डाल रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉफिट जनरेट हो रही है कि नहीं। ठीक है। And is certainly the most visible to shareholders. It is thus not surprising that some managers may be happiest in expressing the project attractiveness in the same terms in which their performance will be reported. Performance will be reported to shareholders and according to which they will be evaluated and rewarded. सही है। लास्ट में briefly discuss the dangers of offering more generous credit। हाँ ये तो भाई साहब देख, फिर से लाइट गई।
Armcliffe intends to achieve a sales increase by extending its receivables. अच्छा ये देखना, लाइट गई है लेकिन ऊपर का ये चालू है, शोकेस की लाइट। Armcliffe intends to achieve a sales increase by extending its receivable collection period. The policy carries several dangers. It implies that credit will be extended to customers for whom credit is an important determination of supplier selection, hinting at financial instability on their part. Consequently, the risk of later than expected or even no payment is likely to increase, although losses due to default are limited to the incremental cost of making these sales rather than the invoiced values. Armcliffe should recognize that there is an opportunity cost involved in trying up capital for lengthy periods. अच्छा, टाइंग अप कैपिटल फॉर लेंथी पीरियड्स, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। मतलब बेसिकली उतने देर तक वो पैसा अटका हुआ है। टाइंग अप मतलब मैं समझ नहीं पाया। इन एडिशन, companies which are slow payers often attempt to claim discounts to which they are not entitled. Armcliffe may then face the difficult choice between acquiescence to such demands versus rejection, in which case it may lose repeat sales. काफी अच्छे से मतलब बताया। एक्चुअली तो वही है कि जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना तेरा डिफॉल्ट बढ़ जाएगा। लेंदी पीरियड्स आर ऑलवेज बैड। एक अच्छा पॉइंट मिला कि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टाई अप हो रही है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व। ठीक है, सही है।